Okay, so today we will have the anatomy class. Okay, so first I just wanted to just हम एक रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि देर वॉज एक अच्छा खासा गैप हो गया, ऑलमोस्ट गैप 1 मंथ का गैप है. सो लास्ट हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार जस्ट क्विक रिवीजन, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और फिर आज हम क्या पढ़ेंगे. ओके एंड कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी एंड टर्म एग्जाम में कवर होने वाली हैं. ठीक है. सो सॉरी एंड टर्म नहीं, सॉरी मिड टर्म एग्जाम. हाँ. So first what we'll see, सबसे पहले तो we have in the very first class what we have discussed what is anatomy. Okay, and then we discussed in this course, which is the anatomy and biology of finfish, we are going to study different organ systems are what? They are basically the different organ which all together perform a one physiological function. Okay, suppose if I'm talking about the respiratory system, means then lungs, okay, and other organs like in fishes the gills. Okay, सो द गिल्स में जो आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उस वो जो उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे एरियल ब्रीदिंग के लिए हैं, एक्वाटिक ब्रीदिंग के लिए हैं, सो दैट इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, पिगमेंट है, क्या कहते हैं जो ब्लड या ऑक्सीजन कैरिंग आपका प्रोटीन है, कैरियर है, उसके बाद आपका ब्लड है, ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं. या फिर हम टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, देन वी हैव टू स्टडी ऑल दोज, मतलब जो ओरल रीजन्स में जो भी पार्ट्स हैं, मतलब जस्ट टू हैव, मतलब खाने के मेस्टिकेशन से लेके फूड ग्रैब से लेके मेस्टिकेशन से लेके फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, डाइजेशन है, बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. सो वो सारा इट्स ऑल कवर्ड इन द, अगर हम सारे ऑर्गन को स्टडी करते हैं, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. So this way we are going to study the 10 organ systems. Okay, so we in very first class we have discussed all those 10 organ systems. Then we started our class with first with the external anatomy. Okay, where what we studied, we seen about the different body shape, then the body symmetry, then body covering. We studied about the skin, the type of scales, placoid scales, non-placoid scales. In non-placoid scale, we studied about the ctenoid, ganoid, cycloid. Okay, this kind of scales we have studied. Then we have studied about the appendages or fins, the median fin or the unpaired fin and paired fin. Okay, then we have started the internal anatomy part. So in the internal anatomy, the very first system that we have taken was a digestive system. So study, as I have told, if I'm talking about the digestive system, it includes all the cells and organs or the tissue all together that performs, okay, the process of digestion. Digestion doesn't mean that the food comes inside the stomach and then it's broken down into the smaller particles and it get absorbed by the animal body. Okay, no. When we are talking about the digestion system, we have to study everything. We have to start from the oral region, means the mouth region, कैसे mouth है, उसमें teeth हैं कि नहीं है, या different type के environment के लिए, different type की feeding के लिए, food type के लिए, is there any adaptation? So we have studied the oral region. The associated structure with the oral region means we studied about jaw, then we studied about the teeth, the gill racus, okay, which is associated in the oral region, the jaw teeth, then pharyngeal teeth. We have studied all this. Then before studying the other alimentary canal, what we have discussed, we first discussed the major feeding type, which type of feeding behavior is present in the fishes, फिर कौन कौन से फीडिंग टाइप है, फिर कुछ आपकी स्पेशलाइज फीडिंग है, देन क्या फीडिंग हैबिट्स हैं, लाइक ऑमनीवोर्स हैं, हार्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं. ओके, जो फीडिंग टाइप्स हैं उसमें प्रेडेटर्स, ग्रेजर्स, स्ट्रेनर्स, सर्कर्स, पैरासाइट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. ओके, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स पढ़ी. उसके बाद उसमें ऑमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस हैबिट्स पढ़ी, क्या क्या फूड टाइप हो सकता है, प्लैंकटन फीडर्स पढ़े हमने. And then we have also taken in detail कुछ जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फिन फिशेज हैं उनकी हमने फीडिंग हैबिट्स भी पढ़ी. कौन सी फिशेज हैं जो ऑमनीवोर हैं, कौन सी हैं जो कार्निवोर्स हैं, कौन सी हार्बीवोर्स हैं. एंड वी स्टडीड
how the fish detect the food. If fish is in the aquatic body, how it detects the food, how a fish able to sense that yes, there in around there is a food that the fish has to take. Okay, so वो सारी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं. नाउ अभी डाइजेस्टिव पार्ट में जो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, नाउ अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द alimentary canal in fin fishes. Okay, so today we will take in detail the alimentary canal in fin fishes. So anyone can tell me what is alimentary canal? कोई बताएगा? Anyone? I'm audible? Yes, ma'am. Ma'am, from mouth to anus. From mouth to anus, what? Uh, Length. Hmm? Length from organ mouth to anus. system. Okay. अच्छा, यहाँ पे पढ़िए एलिमेंट्री के नेक्स्ट वर्ड क्या है? कनाल. Canal. Then Yes, what ma'am. means a canal or a Cavity. Hollow type structure. canal means a pipe, a tube. Pipe. Okay, so a tube-like structure which opens at the mouth and ends at the anus. Okay, so when I'm talking about the alimentary canal, I'm talking about a tubular structure that starts from the oral region and that ends to the anus part. So oral region where the food is taken, and तो जो आपकी एलिमेंट्री कनाल है वो जहां से माउथ खत्म हो रहा है और इसोफेगस शुरू हो रहा है. ठीक है, बकल है, बकल के बाद जो आपका इसोफेगस से शुरू होकर के रेक्टम जो है लास्ट में एनस, जो एनस पॉइंट है जहां से एक्सक्रीटा बाहर आता है. अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करती है फिश या एक्सटीरियर में रिलीज करती है. तो वहां से लेके वहां तक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द एलिमेंट्री canal. Okay, is it clear? So today we are going to see about, we are going to discuss about the alimentary canal in fin fish, and then we will see what are is there is any difference in the structure of the alimentary canal in different type of fishes, or is there is any adaptation in that means structural adaptation that helps in the digestion of the different type of food fishes used to ingest. Okay, so 1 second. So today we will take in detail about the alimentary canal in fin fishes. Okay, so the alimentary canal, okay, as I have told, the in fishes the alimentary canal consists of mouth, esophagus, or which is very similar to the throat we used to have. Now, the esophagus followed by the middle region, which is known as a foregut and the hindgut, midgut, sorry, stomach and intestine. Okay, the foregut and midgut, if I'm talking about foregut means stomach, okay, this is synonymous to stomach, and if I'm talking about midgut, it is synonymous to the intestine. So the foregut and midgut is an area in the or the region of the alimentary canal that is responsible for the absorption of the digestion and absorption of the food component. And then the last part of the alimentary canal, which is known as a hindgut, okay, or it is very similar to the rectum, where the compaction of the indigestible waste material, the food. Suppose if a fish used to take a food, okay, all the items which it has taken as a food is not get broken down and digested. There is some part which is indigestible waste. Okay, so that get compacted in the hindgut, and then through rectum and the anus opening, okay, it goes out. Okay, so this is basically the different parts of the alimentary canal: the mouth, esophagus, foregut, midgut, and hindgut. Okay, now as I have told the structure, the alimentary canal, this is the general division or the reasons which is found in the alimentary canal. But if you remember the last class where we have discussed about the feeding habits of the fishes, what we have seen, there are a number of fishes which have herbivorous, there are few fish
There are many fishes which are omnivorous and there are predators which are carnivorous. Okay, so these three type of feeding habit is present in the fish. Means fish, there are some. Uh, so the structure of the alimentary canal, it varies in a different species of the fishes, and that in relation to their food and feeding habit. Means fishes which have herbivorous type of feeding habit, they have similar type of alimentary canal. The fishes which have carnivorous feeding habit, they have a different type of alimentary canal, and the fishes which have omnivorous feeding habit, they have another type of alimentary canal. Means the structure of the alimentary canal in fishes, okay, it has a variation, and that variation is because of their food and feeding habit. Means the structure of alimentary canal is adapted in relation to the food and feeding habit of the species. Okay, so if we talk about where the variation is in the alimentary canal, okay, so this variation are seen in almost all the region. Okay, the position of the mouth is also depends on what is the feeding habit of the fish. Okay, then the architect of the pharynx and buccal region or buccopharyngeal region. Okay, then the relative gut length, means gut length if I'm talking about the foregut, midgut, hindgut in total. So the relative length of the gut, okay, means the total relative. We will discuss later what does mean relative length. In the general life, the length of the gut, if divided by the body length of the fish, then it gives the value relative length of the gut. Okay, means if you remember, we had the anatomy practical in the lab. You remember? Yes, ma'am. That Yes, time ma'am. we have we have dissected the fish and we have separated the alimentary canal or the gut. Okay, the foregut, the midgut, the hindgut, and then you people have measured the length of the gut. Is it okay? So if we divide the length of the gut by the body length, then the value comes as a relative length of the gut. That is also known as RGL, relative gut length. Okay, so the relative gut length also varies from species to species or varies from the feeding habit. Means the RGL will be different in herbivorous fishes, it will be different in the omnivorous and the carnivorous. Okay, then even the presence and absence of the stomach, means there are some fishes that doesn't have a true stomach. If I'm talking about stomach, means I'm talking about the foregut. So there are several fishes which doesn't have the stomach, they are stomaчлess fishes. So the presence or absence of the stomach is also a adaptation for a particular feeding habit. And then the presence or absence of the pyloric ceca. Okay, so we will discuss the different variation, which is actually the adaptation in relation to the food and feeding habit, that we will also discuss today only. So here is one image. Okay, ये एक herbivorous fish है. The image of the fish which is on the top of the slide is belongs to the herbivorous fish. Okay, and here the lower fish, okay, the fish which is on the lower side of the slide, it is actually the carnivorous fish. अब आप दोनों में इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? उस इमेज को ध्यान से देखिए एंड जस्ट टेल मी क्या डिफरेंस, Yes, ma'am. क्या डिफरेंस है? इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड है, इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है. डिकॉइल्ड है मैडम, एक मिनट. हाँ, तो इसका मतलब कि जो हार्बिवोरस फिशेज हैं उसमें इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है, इजंट मिड गट बहुत लंबी है ना? यस मैम. और अगर मैं कार्निवोरस की बात करूं तो इसमें मिड गट की लेंथ जो है वो एकदम स्ट्रेट इंटेस्टाइन है ना, कोई कॉइलिंग नहीं है, तो लेंथ छोटी हो गई. इजंट अगर मैं यहाँ में अगर कंपेयर करती हूँ तो हार्बिवोरस के में जो है आपकी गट लेंथ ज्यादा है और कार्निवोरस में कम है. ओके, ओरिएंटेशन भी चेंज है मैम. नहीं, ओरिएंटेशन से वो ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, सो बेसिकली लेंथ ऑफ द गट इज में बहुत ह्यूज डिफरेंस है हार्बिवोरस से कार्निवोरस के बीच में. ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं कि जब अगर हम डाइजेस्टिव एनाटॉमी एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो फिशेस को हम बेसिकली
अगर एलिमेंट्री कैनाल पे बेसिकली बात कर रहे हैं तो फिशेस को हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक है द फिशेस विद स्टमक, ओके, and another group is the fishes without stomach. Means there are two groups of the fishes. One group have the fishes which have the stomach, or we can say that the foregut, okay, and there is another group of fishes which doesn't have the foregut. आपका esophagus के बाद क्या कहते हैं, आपका सीधे मिड गट ही है, बस फोरगट के टाइम पे जो मिड गट या जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी स्वेलन हो जाती है. So they lacks, मतलब there are some fishes which doesn't have a true stomach. Okay, their midgut is swollen at the anterior point. Otherwise, they doesn't have a stomach or the foregut at all. Okay, so the carps, the fishes which belongs to the family Cyprinidae. Okay, the cyprinids doesn't have the true stomach. Okay, they are the fishes. आपकी फिर जितनी IMC हैं, जैसे रोहू है, कतला है, मृगल है, या दूसरी भी कार्प हैं, जैसे कि आपकी महाशीर है, आपकी कुछ माइनर कार्प है, शिनस रीबा है, देन पुंटियस की स्पीसीज है, या आपकी गोल्ड फिश है. इस तरह की जितनी भी फिशेज हैं जो कार्प्स हैं, या फिर आपकी सिल्वर कार्प है, बिग हेड कार्प है, साइप्रिनस कार्पियो, ये जितनी भी फिशेज हैं जो कि साइप्रिनिड्स हैं, they doesn't have a true stomach, so they come under the group of the fishes without a stomach. Okay, then there are another group where the fish have the distinct clear foregut or the stomach. So those fishes are known as the fishes with a stomach. So the cold water salmonids, then जितनी भी cat fishes हैं, basically जो predators हैं, जिनकी feeding habit predate करने की, जो अपने से छोटे size की मछलियों को या दूसरे animals को खा जाती हैं, तो वो सब they have the true well developed foregut or the true stomach. Okay, तो जो आपकी cat fishes हैं, फिर आपकी tilapia है, eels हैं, groupers हैं, ठीक है, वो सब में जो है स्टमक है. तो अगर जो जितने भी प्योर प्रेडेटर्स हैं, दे ऑल हैव अ स्टमक एंड टीथ ऑन अ जॉ. ओके, जब हम साइप्रिनिफॉर्मस के कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे इन द लास्ट कोर्स ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ फिन फिश, what we have studied, the cyprinid doesn't have the teeth on the jaw, they have the pharyngeal teeth. Okay, that is a diagnostic character. The same way the cyprinid doesn't have a true stomach. Okay, but the predators like the catfishes, tilapia and eel, okay, or perches, they have the true stomach and they bears their teeth on the jaw. Now here is the relative gut length, which is also in short form known as a RGL. So relative gut length is basically the length of the gut, means from esophagus to the anus opening. Okay, so जो वहां तक जो gut है, gut की length divided by body length. The gut length divided by body length, it gives the value of the RGL. If the fish have the high RGL value, अब high RGL value किस fish की होगी बताइए, जिसकी gut length ज्यादा होगी? Is it? Yes or no? Yes, ma'am. जिसकी गट लेंथ ज्यादा हो. सिंपल देखिए ना, यहाँ पे आप गट लेंथ बॉडी लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसकी फिश की गट लेंथ उसकी बॉडी से ज्यादा होगी, ठीक है, हाँ, या अगर गट की लेंथ ज्यादा है तो आरजीएल वैल्यू हाई होगी. तो जितनी भी स्पीसीज जो कि ऐसा फूड कंज्यूम करती हैं जिसमें कि इनडाइजेस्टेबल मटेरियल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है, उनकी आरजीएल वैल्यू हाई होगी या उनकी गट लेंथ हाई होगी. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से फिश, कौन सा फूड टाइप या कौन सी फीड हैबिट है? हर्बीवोरस होगा. हर्बीवोरस, यस. जो हर्बीवोरस फिशेस होती हैं वो जो फूड कंज्यूम करती हैं, चाहे एल्गी कर रहे हैं या दूसरा प्लांट सोर्स मटेरियल कर रहे हैं, या डेट्रियस जो आपका डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है वाटर बॉडी में, अगर उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो बेसिकली जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हाई प्रोपोर्शन है इनडाइजेस्टेबल मटेरियल का. तो जब प्रोपोर्शन इनडाइजेस्टेबल मटेरियल का ज्यादा है, या जब आप ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें इनडाइजेस्टेबल मटेरियल ज्यादा है, तो उसको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए ज्यादा टाइम भी चाहिए और ज्यादा सरफेस एरिया भी चाहिए. यस और नो? आप सिंपल देखिए ना, जिसमें इनडाइजेस्टेबल मटेरियल जिस फूड में ज्यादा है उसको डाइजेशन के लिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए सरफेस एरिया भी ज्यादा चाहिए और
टाइम भी ज्यादा चाहिए। इसलिए जो फिशेस अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो हार्बीवोरस फिश है उसकी गट लेंथ ज्यादा है, क्योंकि हार्बीवोरस जो फूड है उसमें जो मटेरियल है उसका प्रोपोर्शन, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल का प्रोपोर्शन उसमें ज्यादा है। तो हम फिश की रिलेटिव गट लेंथ निकाल के अगर हम किसी भी फिश की आरजीएल पता कर लें या हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम फिश की फीडिंग हैबिट पता कर सकते हैं। इज इट? तो Yes, अगर ma'am. आपको आरजीएल पता है तो हम फिश की गट लेंथ पता मींस फीडिंग हैबिट पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं रिलेटिव गट लेंथ के। ये स्पीसीज नेम है, ये फीडिंग में क्या फूड, जो क्या प्राइमरी फूड है या जो क्या मेन फूड है द फिश यूज टू हैव, और फिर उसकी आरजीएल है। जैसे यहाँ पे आपका लेबियो है, देन गारा है, देन बार्बिस है। ये तीनों जो है ये मेन प्लांट सोर्स है, हर्बीवोरस फिशेज हैं। तो देखो इन सब की आरजीएल वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ देखो 15.5 है, 4.5 है, 2.8 से 3.1 है। इधर इज अनदर फिश जू प्लैंकटन जो कि कार्निवोरस है, ठीक है। और प्लैंकटन डाइजेस्ट करना वो ज्यादा आसान है, तो जस्ट सी आरजीएल वैल्यू 1 से नीचे है, ठीक है। या चेला बकाला इज अनदर फिश विच इज कार्निवोरस। यहाँ पे भी जो रिलेटिव गट लेंथ है वो 1 से नीचे है, या वैल्यू अगर हमें इस फिश से करूं तो बहुत कम है। तो आप सिर्फ रिलेटिव गट लेंथ निकाल के फिश की फीडिंग हैबिट पता कर सकते हैं। अब बस एक क्वेश्चन में आप में से एक आंसर चाहूंगी, कोई भी कर सकता है। जरूरत क्या है फिश की फीडिंग हैबिट पता करने की? क्यों कैलकुलेट करें हम आरजीएल? एनीवन? कोई बताएगा? क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम थोड़ा। कल्चरिंग करने के लिए मैम। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी फिश की फूड हैबिट पता करने की क्या जरूरत है? मैम सारी स्पीसीज कल्चर का करने के लिए उसको, क्या करने के लिए? उसके कल्चर में। यस, अगर आप कोई भी फिशेस को क्या है, इकोनॉमिक, आप इकोनॉमिक कमोडिटी है ना, आप वहां से कल्चर कर रहे हैं, आप उसे पैसे कमा रहे हैं ना। तो अगर आप किसी भी स्पीसीज को इकोनॉमिक स्टेज में, कल्चर स्टेज में लेके आ रहे हैं, और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि उसकी फीडिंग हैबिट क्या है, तो आप उसको क्या फीड करेंगे? भाई आपका जो कल्चर है उस पर जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, वो तो इस बात पे डिपेंड करती है ना कि आप इनपुट्स कितने डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं। अब इनपुट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो फीड है, जो फिश को जो खाना हम देते हैं, वो टोटल इनपुट का 60% खर्च खाली फीडिंग में जाता है, ठीक है। अब सपोज आप एक स्पीसीज कल्चर कर रहे हैं, उसकी फीडिंग हैबिट है कार्निवोरस, ठीक है। अब आपको पता नहीं है, आप वो डाल रहे हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि कार्निवोरस फिशेस बेसिकली वो खाना खाएंगी जिसमें प्रोटीन पोर्शन ज्यादा हो, ओके। अब आप फिश कल्चर कर रहे हैं कार्निवोरस, आप उसको जो फीड खिला रहे हैं वो क्या कहते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो कम है, आप कम प्रोटीन कंटेंट का खाना खिला रहे हैं, आपको जो जितने टाइम में जो एप्रोप्रिएट ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रही है, लेकिन आप फीड में पैसे तो उतने ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको कल्चर करनी है किसी भी स्पीसीज को, तो यू शुड नो कि उसकी फीडिंग हैबिट क्या है। या कोई भी फिश है जो वाइल्ड में है, उसको कल्चर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कल्चर में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड है, उसकी हम ब्रीडिंग बायोलॉजी के साथ साथ हमको फीडिंग बायोलॉजी भी पता होनी चाहिए, वो क्या खाती है, क्या उसका प्रेफर्ड फूड है। तो उसकी जो सबसे पहली स्टेज है, आप रिलेटिव गट लेंथ से यही बता लेंगे कि यस ये हार्बीवोरस है या ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है। और उसके बाद आप जब गट को कट ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो फूड है, उस फूड को भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको गट के अंदर जो कंटेंट है वो भी पता चलेगा। तो वहां से आपको फिश का प्रेफर्ड फूड भी पता चलता है, ठीक है। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, या इसलिए ये जानना जरूरी है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ अब हम बात करते हैं गट्स और इसके सब डिवीजन। जैसे कि मैंने बोला इस डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट पार्ट्स हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल के, माउथ से लेके एनस तक। तो जो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है उसको हेड गट बोलते हैं। तो हेड गट क्या है? हेड गट में बेसिकली ओरल रीजन है, बकल रीजन है और फेरेंजियल रीजन है जहाँ पे गिल्स कैविटी है। तो हेड गट हैव द ओरल मीन्स बकल एंड फेरेंजियल रीजन, और बकोफेरेंजियल रीजन भी बोलते हैं या बकोफेरिंग्स कहेंगे।
देन foregut है, foregut is just behind the head gut, okay, and it includes what? Esophagus, stomach and pylorus, okay. foregut के बाद आपकी आएगी midgut, that includes the intestine which is posterior to the pylorus, okay, and then there the last one is the hindgut, okay, जो कि आपका most posterior end है alimentary canal का, okay. So this is the subdivision: the head gut, foregut, midgut, hindgut. Head gut have a buccopharynx region, foregut have the esophagus, stomach and pylorus, midgut is intestine, and the hindgut is basically the rectum, okay. So now we will see today the alimentary canal in cartilaginous fishes as well as in the teleost fishes or bony fishes. So in cartilaginous fishes, we have taken the example of the Scoliodon. Scoliodon is a cartilaginous fish which is also known as a dog fish. Okay. So सबसे पहले अगर मैं alimentary canal की बात कर रही हूँ तो मैंने कहा जो सबसे पहला रीजन क्या है? हेड गट है. हेड गट में हम किसकी बात कर रहे हैं? माउथ की, बकल की, फेरिंक्स की, टीथ्स की, टंग की. So we will see all those. So the shape of the mouth is crescent. Crescent मतलब जब चांद होता है ना दूसरे या तीसरे दिन का, उसकी जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप. ओके. तो इसमें माउथ की पोजीशन वेंट्रल है और उसकी शेप जो है वो क्रिसेंट के जैसी है, दूसरे तीसरे दिन का जो चांद होता है उसके जैसी है. उसके बाद जो आपकी बकल कैविटी है, बकल कैविटी मतलब माउथ के जॉस का रीजन. ओके. सो इसमें आपका स्कोलोडॉन में क्या होता है? इसमें बहुत ही थिक और रफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और इसमें कुछ डर्मल डेंटिकल्स भी होती हैं. ठीक है. और ये जो होती है यही डर्मल डेंटिकल्स मतलब इट डजंट हैव द ट्रू टीथ्स. ओके. ये जो डर्मल डेंटिकल्स होती हैं यही जो है इनलार्ज और पॉइंटेड होके जॉ के ऊपर एज ए टीथ अरेंज होती हैं. सो स्कोलियोडॉन में क्या होता है कि जो टीथ्स होते हैं ना वो सेवरल रोज में अरेंज होते हैं. जैसे जॉ है, जॉ पे एक सबसे आउटर मोस्ट रो है, फिर सेकेंड रो है, फिर थर्ड रो है और मे बी द फोर्थ रो भी है. तो होता क्या है कि जो सपोज 3 रोज में टीथ अरेंज है स्कोलियोडॉन में, तो जो स्कोलियोडॉन है वो एक साथ सारे रोज के टीथ्स को किस मतलब फंक्शनल नहीं होते हैं एट अ सिंगल टाइम. सारे रोज के टीथ्स फंक्शन नहीं है. तो सबसे आउटर मोस्ट रो है, सबसे पहले वो फंक्शनल होती है. फिर जब वो टीथ्स वेयर और टेयर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या होती है, जब वो टूट गए फर्स्ट रो के टीथ्स, तो अब जो सेकेंड रो है वो माइग्रेट होके आगे बढ़ जाती है और फिर वो फ्रंट रो का काम करने लगती है. फिर थोड़े टाइम के बाद, थोड़ी एज के बाद थर्ड वाली जो है वो आगे की तरफ जो है माइग्रेट करती है. तो स्कोलियोडॉन में जो टीथ का काम है वो फूड को कैप्चर करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, लेकिन मेस्टिकेशन के लिए नहीं है. मतलब स्कोलियोडॉन के टीथ्स का फंक्शन जो है वो मेस्टिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं है. ओके. उसके बाद टंग, दे हैव अ सिंपल एंड नॉन मस्कुलर टंग जिसमें भी कोई भी ग्लैंड नहीं होती है. ओके. ऐसे जो भी कोई म्यूकस सिक्रेटिंग, सलाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड नहीं होती है उनके टंग पे. नाउ द फेरिंक्स, अगर मैं फेरिंक्स रीजन की बात करूं तो जो कैविटी जो कि गिल्स के साथ ओपन होती है, तो फेरिंक्स में भी कुछ कुछ डर्मल डेंटिकल्स होती हैं. देन इसोफेगस, आपका जो फेरिंक्स है या जो बकोफेरिंक्स है वो एक छोटे मस्कुलर फोल्ड में ओपन होता है जिसको कि हम इसोफेगस बोलते हैं. फिर इसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन होता है ना. स्टमक के अब 2 चैम्बर होते हैं. ठीक है. एंटीरियर चैम्बर को हम कार्डियक चैम्बर बोलते हैं और पोस्टीरियर चैम्बर को हम पाइलोरिक चैम्बर बोलते हैं. एक्चुअली स्कोलियोडॉन में जो शेप है स्टमक की वो जे शेप की है, जो अल्फाबेट जे है उसके जैसी होती है. तो जो आपका लॉन्ग लिम्ब है, अगर आप जे लिखते हैं तो एक सीधी लाइन है और फिर एक छोटा कर्व है. ठीक है. तो जो सीधी लाइन है उसको हम लॉन्ग लिम्ब बोलते हैं जे का, और जो छोटा कर्व है उसको हम शॉर्ट लिम्ब बोलते हैं. तो जो लॉन्ग लिम्ब है उस वो कार्डियक स्टमक है, वो एंटीरियर पार्ट है स्टमक का, वो कार्डियक है. और जो पोस्टीरियर शॉर्ट पार्ट है उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं. अभी हम इसका एक पिक्टोरल वो भी देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर. ओके. उसके बाद है आपका इंटेस्टाइन. तो जो आपका पाइलोरिक स्टमक है, जो आपका पाइलोरिक स्टमक है वो इंटेस्टाइन में खुलता है और उसके अंदर कुछ वॉल्व होते हैं. उन वॉल्व का क्या फंक्शन होता है?
उस वॉल्व की वजह से एक तो स्टमक से जो फूड है वो डायरेक्टली जो है जो स्टमक में जो फूड है ना वो डायरेक्टली आपका या बहुत स्पीड से जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जैसे अगर फूड स्टमक में है तो वो कुछ टाइम तक वहां होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, उसका डाइजेशन होगा, वो और एक फूड जो है वो स्लरी जैसा बन जाएगा, उसके बाद फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पे फर्दर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, इंटेस्टाइन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जो स्टमक से जो इंटेस्टाइन में फूड जाना है तो वो रैपिडली या अनडाइजेस्टेड ही, या अभी डाइजेशन, स्टमक पार्ट में जो डाइजेशन होना है उसको पार्ट करके अंदर ना चला जाए, ठीक है। इसलिए वहां पे वॉल्व होते हैं। वॉल्व मतलब ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन को मूव करते हैं। अब सिंपल सी मान लीजिए एक कॉरिडोर है और उसमें दरवाजे लगे हैं, ठीक है। तो वो दरवाजों से क्या है कि आप मतलब ओपन पैसेज नहीं है, एक वॉल्व है जो ऑब्स्ट्रक्शन करता है और जब जरूरत है वो तभी ओपन या क्लोज होगा, ठीक है। तो इस जब दोनों के माउथ मतलब स्टमक, पाइलोरिक स्टमक और इंटेस्टाइन के जो जॉइंट है उस जॉइंट पे ये स्क्रॉल शेप का वॉल्व होता है। एक तो वो प्रिवेंट करता है फास्ट पैसेज ऑफ फूड इनसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है। और दूसरा उसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर की जो एब्जॉर्प्शन सरफेस है, क्योंकि इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल है या न्यूट्रिएंट है, ओके। सो क्योंकि इस कॉरिडोर में जो वॉल्व होता है वो 2.5 टर्न शेप में होता है एंटी क्लॉकवाइज में, तो उससे क्या होता है सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड जो सबसे लास्ट पार्ट है आपका जो हिंड कट है या रेक्टम है, तो आपकी इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम में खुलती है। एंड इसमें जो आपका जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज होती है, रेक्टम एक ग्लैंड भी होती है जिसको रेक्टल ग्लैंड बोलते हैं, ओके। सो रेक्टल ग्लैंड की ओपनिंग भी आपकी हिंड कट में या रेक्टम में होती है। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यू जस्ट सी, अगर यहाँ पे देखें ये जो रीजन है, ये देखिए, ये अगर आप जे देखें जैसे उल्टा जे है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो लॉन्ग लिम्ब है, ये जो सीधा है, ये इसोफेगस ओपन हुआ, ये सीधा है, दिस इज नोन एज अ कार्डियक स्टमक। और जब यहाँ से ये ऐसे टर्न हुआ, जैसे हम जे लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, जैसे उल्टा लिखा हो जे वैसे समझिए, तो ये आपका शॉर्टर लिम्ब है और इसको हम बोलते हैं पायरोलिक स्टमक। ये जो पायरोलिक स्टमक है उसके बाद आपकी आती है इंटेस्टाइन। तो हेयर यहाँ पे देखिए, ये तो आपका ऊपर से स्ट्रक्चर, ये आपका सेक्शन है। सो हेयर यू कैन से दैट इन द इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखिए 2.5 टर्न वॉल्व है जो अंदर, जो मैंने बोला ना इंटेस्टाइन के अंदर इन 2.5 एंटी क्लॉकवाइज टर्न स्क्रोल वॉल्व है। इसकी वजह से एक तो फूड का रैपिड पैसेज रुकता है फ्रॉम पायरोलिक स्टमक टू द इंटेस्टाइन, और दूसरा क्या कहते हैं कि इसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये आपका रेक्टम है और ये आपका रेक्टल ग्लैंड है जो कि आपके रेक्टम में ही ओपन होती है, ओके। नाउ वो ये हो गया अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल इन द कार्टिलेजिनस स्पीशीज। अप टू हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. मैम ये बुर्सा इंटाइना क्या है मैम, यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली ये एक जंक्शन है। जंक्शन है कौन सा? पायरोलिक स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच का। ये जंक्शन में कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा सुकड़ गया अगर आप यहाँ पे देखें, तो इसका भी जो बेसिक फंक्शन यही होता है कि जो रैपिड पैसेज है या जो स्लिप कर रहा है, मतलब जो फूड है एक तो वो स्लिप होके इंटेस्टाइन में नहीं आए, और इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव मटेरियल ऑलरेडी आ गया है वो स्लिप होके वापस पायरोलिक स्टमक में ना जाए। मतलब जो इधर ट्रांसफर हो गया उसका जो बैक फ्लो होता है ना, उसको प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके। And now the alimentary canal of the teleost, okay. So now we will see about the alimentary canal of teleost or bony fishes, okay. So यहाँ पे जो है, जो दो टिपिकल एग्जाम्पल लिए मैंने एलिमेंट्री कैनाल के, एक लिया है क्लैरिस बैट्रिकस का और एक मिस्टर सिंगला का, ओके। These two species has considered as a typical example for the teleost alimentary canal, okay. So here also we will see
what are the different parts or region in the alimentary canal of bone fishes? It's very similar to the मतलब जो general division है, general parts हैं, वो सारे alimentary canal from fishes to human it is similar. Hindgut आपका foregut है, midgut है, hindgut है, तो यहाँ भी we will see the mouth. Okay, mouth position. Okay, it always varies species to species. And this variation is कि fish की feeding habit क्या है, वो predator है, वो grazer है, वो strainer है, वो parasite है, उस सब पे depend करता है what will be the shape of the mouth. Then the teeth. Okay, अब teeth जो है वो कैसे हैं, pointed है, vomerine है, maxillary है, mandibular है या pharyngeal है. Okay, वो भी depend करता है fish की feeding habit पे. Then pharynx. Pharynx is basically the gill cavity, जहाँ पे gills है. Okay, so कुछ fishes हैं जिनमें pharynx में teeth होते हैं, जैसे कि हमें carps की बात करूँ, they have the pharyngeal teeth. Okay, कुछ ऐसे fishes हैं आपके pharynx region में gill है, gill arch, gill जो gill arch होते हैं उस पे gill rackers होते हैं. अब gill rackers का shape, उनकी density, उनका arrangement on the earth, ये भी vary करता है फिश की फीडिंग हैबिट के हिसाब से. मींस जो फिशेस प्लैंकटन फीडर है, ठीक है, जैसे आपकी सिल्वर कार्प है या आपकी कतला कतला है, तो ये जो फिशेस है ये प्लैंकटन खाती है ना, तो इनका जो गिल रैकर्स है, गिल अर्थ जो गिल रैकर्स है वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, और दे बेसिकली फॉर्म द सीव लाइक स्ट्रक्चर. एक छलनी, जिसे चाय छानते हैं ना आप या आटा छानने वाली, उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है. तो वहां से जब फूड जब वाटर क्रॉस करता है तो उसके साथ जो माइन्यूट प्लैंकटन से, जू प्लैंकटन से, फाइटोप्लैंकटन से क्या होता है, वाटर निकल जाता है और जो प्लैंकटन है वो छन के वहीं रह जाते हैं, एंड दैट फिश यूज एज अ फूड. ओके, तो ये सारे मॉडिफिकेशंस जो होते हैं फेरिंग्स रीजन में, ये भी फिश की फीडिंग हैबिट पे डिपेंड करते हैं. उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है टेलियस फिशेस में जिसको हम बोलते हैं गलेट. जो गलेट होता है बेसिकली फेरिंग से जो इसोफेगस की ओपनिंग होती है वहां पे एक सर्कुलर अपर्चर, ये एक सर्कुलर होल होता है, उसको गलेट बोलते हैं. ठीक है, और उसी के ऊपर और नीचे फेरेंजियल टीथ्स होते हैं. गलेट के ऊपर जो फेरेंजियल टीथ्स हैं उनको सुपीरियर फेरेंजियल टीथ्स बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको इंफीरियर फेरेंजियल टीथ्स बोलते हैं. ओके, उसके बाद आपका इसोफेगस है. ओके, सो इसोफेगस जो है वो उसके बाद हो गया आपका इसोफेगस. अब इसोफेगस के बाद यानी कि शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जस्ट बिहाइंड द गलेट एंड जस्ट बिफोर द स्टमक इज द, so just behind the gullet and just before the stomach is the short tube like structure which is known as a esophagus. उसके बाद अब आता है तो ये जो esophagus है, गलेट है, esophagus है और स्टमक है, this all comes under the foregut. आपका oral cavity जो है, the buccal or pharyngeal cavity है, that is the head gut. Gullet, esophagus and stomach is a आपका foregut. ओके, सो स्टमक इज बेसिकली अ सैक लाइक, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसका जो डिस्टल एंड जो है वो किसके साथ कंटिन्यू करता है, इंटेस्टाइन के. तो जो स्टमक और इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे, थोड़ा सा जैसे स्टमक थोड़ा फूला हुआ है या उसका थोड़ा ज्यादा बैग लाइक है, और फिर इंटेस्टाइन पतली है. तो जैसे ही स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा दबा हुआ होता है, और उसके पास में कुछ मस्कुलर स्प्रिंक्चर्स होते हैं जिनको हम पायरोलिस बोलते हैं, पायरोलिस सीका बोलते हैं, तो वो भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ये मैं दिखा रही हूँ आपका हेड गट या हेड रीजन में. हियर यू कैन सी दैट दिस इज द हेड ऑफ द क्लैरिस बैट्रिकस. ये आपके गिल्स हैं, जो गिल रैकस हैं, ये ब्लैक वाले, सॉरी ये गिल आर्क है, और इसके ऊपर आपके गिल रैकस है. यहाँ पे देखिए ये आपका इसोफेगस है और ये पोजीशन है जिसको हम गलेट बोल रहे हैं. यहाँ पे देखिए आपके सुपीरियर फेरेंजियल टीथ्स हैं और यहाँ पर आपके inferior pharyngeal teeth है. Okay, and then it is open into the small tubular esophagus. Okay,
देन द इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन जो है, जैसे कि मैंने बोला, मैं क्लैरिस बैट्रिकस और मिस्टर सिंगला का एग्जांपल ले रही हूँ। दोनों ही फिशेज जो हैं ये आपकी कार्निवोरस फिशेज हैं, या जो इनका जो प्रेफर्ड फूड टाइप है वो एनिमल फूड है। ओके, सो इसलिए जो इनकी इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कम है या मॉडरेट है, इट हैज ओनली 1 और 2 कॉइल। ओके, एंड देन आपका जिसका जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है विच हैव सम जिगजैग पैटर्न, और इंटेस्टाइन के बाद है आपका रेक्टम, and it opens to the exterior by one opening which is known as a anus. Okay, so this is a typical structure of the alimentary canal of Clarius batrachus. Here you can see that this is esophagus, small tubular, then this bag-like structure is a stomach. Okay, then यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेक्शन है, और फिर आपकी ये थोड़ी सी जो मोटी है ये एंटीरियर इंटेस्टाइन है, फिर एक कॉइल के बाद ये मिडिल इंटेस्टाइन है, एंड देन द रेक्टम एंड एनस, और ये आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर है, which actually secretes the digestive juice which is required for the digestion of the ingested food. Okay, so this is alimentary canal of Clarius batrachus. अब हम थोड़ा सा हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, जो अलग अलग सब डिवीजन है एलिमेंट्री कैनाल के, उनमें सेलुलर अरेंजमेंट कैसा है उन टिश्यूज में। अब अगर फेरिंग्स में देखें, फेरिंग्स और इसोफेगस में क्या है, फेरिंगियल रीजन में आपकी जो इनर लाइनिंग है उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी हैं और टेस्ट बड भी है। फिर इसोफेगस में भी आपकी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स का नंबर काफी बढ़ जाता है, ठीक है, एंड सब म्यूकसल लेयर है। देन ये आपका स्टमक है, यहाँ पे देखिए आपका फोल्डिंग है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी एपिथेलियम जो है वो बहुत बार फोल्ड हो रही है। इस फोल्डिंग का रीजन क्या है, अगर इस तरह से, अगर ये स्ट्रेट अरेंज होगी, जैसे ये ऊपर देख रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट अरेंज होगी तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कम मिलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे फोल्डेड अरेंज है तो सरफेस एरिया ज्यादा है। फिर अगर आप क्या कहते हैं गैस्ट्रिक में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे और भी ज्यादा जो है एपिथेलियम की फोल्डिंग्स भी डीप होती है और उनका सेल्स का साइज भी थोड़ा बड़ा है। उसके बाद ये है आपका इंटेस्टाइनल रीजन, यहाँ पे भी फोल्डिंग इसलिए है क्योंकि इस फोल्डिंग की अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। इससे भी आपकी क्या कहते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, देन कोलुमुलर एपिथेलियम है, ओके, जो कि हाँ, इससे क्या है एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि मैं आप पहले जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फिन फिशेस, व्हाट आई हैव टोल्ड कि जो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर, अभी हमने टिपिकल स्ट्रक्चर स्टडी किया, एक टिपिकल एग्जांपल लिया क्लैरिस बैट्रिकस का, हमने देखा कि आपका माउथ रीजन है, हेड आपका हेड गट है, फोक गट है, मिड गट है, हिंड गट है, फिर हमने देखा हेड गट में बकल रीजन है, फेरेंजियल रीजन है, देन वी हैव सीन द फोर गट में आपका गलट है, इसोफेगस है, स्टमक है, फिर मिड गट में इंटेस्टाइन है और हिंड गट में रेक्टम है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जैसी फिश की फीडिंग हैबिट होगी, ठीक है, जैसी फिश की फीडिंग हैबिट होगी बिल्कुल वैसी ही जो है उसकी एलिमेंट्री कैनाल वेरी करेगी, ठीक है। तो इसलिए अभी हम देखेंगे कि फीडिंग हैबिट के हिसाब से क्या मॉडिफिकेशंस हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेंटेशन की, टीथ्स की। तो जितनी भी प्रेडेटर्स हैं, जो कार्निवोरस फिशेस हैं, उनके जॉज में हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ्स होते हैं, ठीक है। And even there are some fishes which also possess the teeth on the tongue also. Okay. Then आपके जो herbivorous fishes हैं उसमें jaws पे teeth होते ही नहीं, they are completely absent. Okay. फिर उसके बाद कुछ omnivorous fishes हैं उसमें fine teeth होते हैं, और कुछ आपकी जैसे carp हैं जिसमें jaws में teeth नहीं होते, pharynx में होते हैं। Okay. फिर जैसे कि कुछ प्लैंकटन फीडर्स हैं उनमें जो है आपका इन ये जो डेंटुलस स्ट्रक्चर है, डेंटिकल्स हैं छोटी छोटी, वो फेरिंग्स रीजन में होती हैं। वो फेरिंग्स रीजन में क्यों होती है, क्योंकि वो फिल्टर फीडिंग करती हैं। तो जो रैकर से जो फिल्टर हुआ क्या कहते हैं प्लैंकटन, वेदर फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, वो जो है वहां पे जो डेंटेशन है वो उसके मेस्टिकेशन में हेल्प करता है।
सो अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल में फ्रॉम क्या कहते हैं आपका ओरल कैविटी से लेके फोर गट, मिड गट, हिंड गट, हर रीजन में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है और वो मॉडिफिकेशन जो आपका होता है इन रिलेशन टू द फीडिंग हैबिट ऑफ द फिश होता है, ठीक है। यानी कार्निवोरस है तो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड टीथ्स हैं, हार्बिवोरस है तो टीथ्स कंप्लीटली एब्सेंट हैं, अगर ओमनिवोरस हैं तो छोटे फाइन टीथ्स प्रेजेंट हैं, प्लैंकटन फीडर हैं तो टीथ्स नहीं है लेकिन बकोफेरेंस रीजन में डेंटेशन है। तो इस तरह से, और ये सारे मॉडिफिकेशन इसलिए हैं कि इस जैसी फीडिंग हैबिट है वैसी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बकोफेरेंस, ओके। सो कार्निवोरस फिशेस में बकल कैविटी और फेरेंक्स के बीच में क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम हार्बीवोरस फिशेस की बात करें तो डिमार्केशन बकल और फेरेंजियल कैविटी दोनों में जो है वो क्लियर है। उसके बाद अगर मैं गिल रैकस की बात करूं तो जो कार्निवोरस फिशेस हैं उनके गिल रैकस लॉन्ग, हार्ड और टीथ लाइक है, स्ट्रॉन्ग है, हार्डी है। ओमनिवोरस में जो है वो शॉर्ट और स्टम्पी स्ट्रक्चर है। हार्बीवोरस में जो है वो सीव लाइक है, ओके। और प्लैंकटन फीडर में तो इट मेक्स अ वेरी फाइन सीप to retain the zoo and the phytoplankton, the same way the taste bud and the mucus secreting cell. Herbivorous और omnivorous fishes में taste, number of taste bud, okay, या the cell which secretes the mucus वो ज्यादा है as compared to the carnivorous fishes. Means carnivorous fishes में number of taste bud जो है वो less होता है या कुछ कुछ species में तो totally absent होता है। तो जो herbivorous या omnivorous fishes हैं उसमें number of papillae which bears the taste bud and the mucus secreting cell is more as compared to the carnivorous fishes. Now अगर मैं esophagus की बात करूं तो आपके herbivorous and omnivorous में esophagus short और narrow है, लेकिन जो कार्निवोरस या प्रेडेटरी फिश होती है क्योंकि वो पूरा का पूरा फिश इंगल्फ कर लेती है ना, मीट पोर्शन इंगल्फ करती है, बड़ा एनिमल भी अंदर डाल लेती है, तो जो उनका इसोफेगस होता है वो ज्यादा वाइडर भी है और ज्यादा लॉन्गर भी है। नाउ हियर वी कैन सी दैट कि डिफरेंस कैसे है आपका गिल रैकस में। ये देखिए ये आपकी कार्निवोरस फिश है, यहाँ पे देखिए गिल रैकस टीथ लाइक है, हार्डी है और डिस्टेंटली लोकेटेड है। यहाँ पे देखिए आपकी हिल्सा का ये है, ये गिल हिल्सा इज अ फिल्टर फीडर, तो यहाँ पे देखिए फाइन है, बहुत क्लोजली प्लेस्ड है विच फॉर्म द sieve like structure. So this is a carnivorous fish, this is a plankton feeder. उसके बाद अब जैसे कि ये आपका कतला कतला, कतला कतला भी plankton feeder है, ठीक है। इसमें भी देखिए बहुत फाइन जो है इसमें आपके गिल रैकर्स हैं, इट फॉर्म्स द sieve like छन्नी जैसा वो है। उसके बाद अब हम स्टमक की बात करते हैं, तो जितनी भी कार्निवोरस फिशेस हैं दे हैव अ प्रोमिनेंट थिक वॉल्ड स्टमक। जो प्लैंकटन फीडर्स हैं उनका जो स्टमक है उनका साइज जो है वो रिड्यूस कर जाता है, छोटा होता है। और जैसे आपकी कुछ जो फिशेस हैं लाइक कार्प्स, जैसे कि मैंने बोला दे डजंट हैव एनी ट्रू स्टमक, ओके। स्टमक होता है नहीं, बस उनका जो एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्शन होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है, ओके। सो उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन हम करें इंटेस्टाइन में, तो सम कुछ फिशेस हैं जिसे मैंने बोला जिसमें कि जब ट्रू स्टमक नहीं है तो उनका एंटीरियर पार्ट है वो थोड़ा स्वेलन करके सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको इंटेस्टाइनल बल्ब बोलते हैं, which is very similar or synonymous to the stomach of the carnivorous fishes, okay. So जो आपकी जैसे जो कार्निवोरस फिशेस हैं या दूसरी ओमनिवोरस फिशेस हैं दे हैव अ स्टमक, लेकिन जैसे आपकी कार्प हैं जिनमें आपका ट्रू स्टमक नहीं होता है तो इसोफेगस के बाद उसमें डायरेक्टली इंटेस्टाइनल स्वेलिंग होती है, उस इंटेस्टाइनल स्वेल्ड रीजन को या सैक को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल बल्ब, ओके। सो यहाँ पे देखिए देयर इज सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कार्निवोरस स्पीसीज। यहाँ पे देखिए ये आपका ज़ेनोटेंडोन कैंसिला है, एकदम स्ट्रेट है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। इसोफेगस है, सैक लाइक, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, आरजीएल बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और स्टमक जो है क्लियर प्रोमिनेंट थिक वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है।
फिर अब हम ये बात करते हैं एलिमेंट्री कनाल्स इन लेबियोरोइटा। ये आपकी सिनस मेगला में है, ये आपकी महाशी टॉर्टोर में है, और ये आपकी लेबियोरोइटा में है। ठीक है, सो देखिए इन सब में जो है आपका इंटेस्टाइन कितनी कॉइल्ड है, और ठीक है, और ये जो रीजन है ये आपका स्टमक नहीं, बेसिकली इंटेस्टाइन का जो एंटीरियर पोर्शन है वो स्वेल हो गया है एंड इट फॉर्म्स द इंटेस्टाइनल बल्ब। ओके, सो ये जो है आपकी एलिमेंट्री, और यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इनकी जो फीडिंग हैबिट है या तो ऑम्निवोरस है या हार्बिवोरस है, इसलिए इनकी जो रिलेटिव गट लेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी। ओके, ये मैंने बता दिया। फिर आपका पायरोलेक्सिका है, ठीक है, पायरोलेक्सिका में जो क्या है, देयर इज बेसिकली अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो कि जंक्शन पे होती है, जहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा है और इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, उस जंक्शन पे कुछ प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पायरोलेक्सिका बोलते हैं। जो स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम पायरोलिस बोलते हैं, और स्टमक के एंटीरियर पार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं, पोस्टीरियर को पाइलरिस बोलते हैं। तो जो पोस्टीरियर पार्ट के बाद ही आपका इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो वो जो जंक्शन है पायरोलिस और इंटेस्टाइन का, उस जंक्शन पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं पायरोलेक्सिका। सो देयर आर फ्यू स्पीसीज जिसमें आपके पायरोलेक्सिका होते हैं, और देयर आर फ्यू स्पीसीज जिसमें कि पायरोलेक्सिका नहीं होते हैं, और अगर ये हैं जिन स्पीसीज में, उनमें भी इनका नंबर और साइज जो है वो वेरी करता है। यहाँ पे एक कंपैरिजन है गट लेंथ का। आप ये देखिए, ये कार्निवोरस फिश की गट है, देखिए ये माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, और एक स्ट्रेट मिड गट हिंड गट। ऑम्निवोरस है, स्टमक है और कॉइल्ड इंटेस्टाइन है, और उसके बाद हिंड गट है। तो ये, और फिर ये तीसरा भी ओमनिवोरस है। लेकिन इन दोनों में आप देख रहे हैं जो ओमनिवोरस जिसमें कि प्रीडोमिनेंट फूड एनिमल टाइप है, उसमें इंटेस्टाइन की कॉइलिंग कम है, और वो ओमनिवोर जिसमें प्रीडोमिनेंट फूड प्लांट टाइप है, उसमें जो है इसकी कॉइलिंग थोड़ी ज्यादा है, यानी लेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा है। और यहाँ पे हम प्लैंकटन फीडर्स देखें या फिर हार्बिवोर, उसमें देखिए बहुत ज्यादा फोल्डिंग है आपके इंटेस्टाइन में। तो ये है आपकी एडेप्टेशन इन द एलिमेंट्री कैनाल बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट। इज क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So for today up to this only, okay? And यहाँ तक ही जो है आपका एंड टर्म, सॉरी नॉट एंड टर्म, मिड का जो एग्जाम है मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ओके, Yes, ma'am.